guys, hello and welcome back to part 3 of this series of lectures जहाँ पे हम कर रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इससे पहले दो पार्ट हमने अपलोड कर दिया है इस चैनल पे जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 सॉल्व किया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल पे जाइए और फर्स्ट दो पार्ट देख लीजिए। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 says two lamps, one rated at 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to main supply. What is the current drawn from the supply? Okay, now come to the solution. First of all, we'll make a circuit diagram. This is the first lamp L1, this is the second lamp L2, and both of these are connected in parallel with a battery of 220 volt. This is L1, this is L2. सो लैम्प वन L1 का पावर दे रखा है 60 वॉट, L1 का पावर दे रखा है 100 वॉट। एंड L2 का पावर दे रखा है दैट इज पावर टू 60 वॉट। ठीक है, तो हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जो वोल्टेज 220 वोल्ट यहाँ पे वही वोल्टेज इस L2 के अक्रॉस होगा और वही वोल्टेज इस L1 के अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सो V1 इक्वल्स टू 220 वोल्ट, तो यहाँ से I1 निकाल लेंगे। I1 मतलब जो इस लैम्प में जो करंट जाएगा दैट इज P by V, power equals to V by I, so I equals to P by V. So I1 equals to 100 upon 220, that is 5 by 11. Now in second case, P2 is 60 watt, voltage across this P2 will be also 220 volt. I2 equals to P by V, means 60 by 220 is 3 by 11. ठीक है, तो इस लैम्प में जो करंट जा रहा है दैट इज 5 by 11 I1, इस लैम्प पे जो करंट जा रहा है I2 दैट इज 3 by 11। हमसे पूछा करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I equals to 5 by 11 plus 3 by 11, that is 8 by 11 amperes. This is the current drawn from the supply. Okay, now let's move on to question number 16. Which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or 1200 watt toaster in 10 minutes? So we know energy equals to power into time. So for TV set, energy equals to, we will first convert watt into kilowatt, so 250 by 1000, time in hours. So energy used by TV set is 1 by 4 kilowatt hour, that is 0.25 kilowatt hour. Now for toaster, power is 1200 watt, that is equal to 1.2 kilowatt. I will convert time into hours, 10 minutes equals to 1 by 6 hour. Now energy equals to power into time, that is 1.2 into 1 by 6, that is 0.2 kilowatt hour. So the TV sets uses energy 0.25 kilowatt hour and toaster uses energy 0.2 kilowatt hour. So which uses more energy? TV set. So our answer will be which uses more energy, that is TV set. Okay, now let's move on to question number 17. An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service main. Calculate the rate at which heat is developed. The rate at which heat is developed is called power. Rate at which heat is developed is called power. So हमें power निकालना है यहाँ पे, power equals to I square R, that is equals to 15 into 15 into 8 ohms, that is
225 into 8, that is 2000 watt, that is 2 kilowatt. That's the answer. Now let's move on to next question. Let's move on to question number 18. अब यहाँ से theoretical questions है. Question number 18 says why is tungsten used in filament of electric lamp? Electric lamps के filament में tungsten को भी use किया जाता है. तो इसका आंसर होगा tungsten is an alloy which has very high melting point and high resistivity. So it does not burns at high temperature. मतलब tungsten क्या? Tungsten alloy है. alloy का resistivity क्या होता है? High. Tungsten is an alloy. It has high resistivity and high melting point. So it does not burn at high temperature. At high temperature. So let's move to part B of this question. Wide conductor of heating devices are made up of an alloy rather than pure metal. कह रहा है कि हीटिंग मटेरियल के एलिमेंट्स को एलॉय से क्यों बनाते हैं. तो वी नो दैट रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हाई. ओके, तो एलॉय का रेजिस्टिविटी क्या होता है? हाई होता है. रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हाई. रेजिस्टिविटी हाई है तो क्या होगा? इट विल प्रोड्यूस मोर हीट. So it will produce more heat as compared to metal. हीट क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी. मतलब हीट किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे. हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी मीन्स रो. अगर रो हाई होगा तो क्या? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए. रो ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. हीट ज़्यादा होगा. इसलिए हीटिंग एलिमेंट्स में एलॉय का यूज होता है. ठीक है. Now next question is why is series arrangement not used for domestic purpose? तो उसका दो रीजन. रीजन नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा है कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए घर में जो लाइट वाइट लगती है उसमें सीरीज अरेंजमेंट का यूज नहीं होता. घर में जो बल्ब लगता है, घर में जो अरेंजमेंट होता है डेट इज पैरेलल अरेंजमेंट. फर्स्ट रीजन तो उसका ये है कि अगर सीरीज में लेट सपोज ये 3 बल्ब है और तीनों बल्ब अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ये करंट फ्लो कर रहा है. तीनों बल्ब में सेम करंट फ्लो करेगा. तो अगर किसी कारण से ये बल्ब हमारा डैमेज हो जाता है, ये बल्ब अगर यहाँ से डैमेज हो जाएगा तो फिर ये करंट आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा. तो हमारा अगर एक बल्ब डैमेज होता है तो फिर ये दोनों बल्ब में लाइट नहीं जलेगी. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि डोमेस्टिक पर्पस में सीरीज यूज नहीं होता है. सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन यूज होता है. और दूसरा रीजन ये है कि हमें पता है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है. वोल्टेज gets divided in series connection. और सेकंड रीजन है कि वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन सीरीज कनेक्शन. हमें मालूम है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है. तो अगर हमारा कनेक्शन डोमेस्टिक हाउस में अगर सीरीज में होगा तो वोल्टेज जो है 220 वोल्ट लाइन होता है डोमेस्टिक कनेक्शन में. तो 220 वोल्ट लाइन हमारा वोल्टेज जो है डिवाइड हो जाएगा. तो घर में जो बल्ब होते हैं उनमें लो वोल्टेज हो जाएगा. Okay, now let's move on to part D. How does the resistance of the wire vary with this cross sectional area? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है resistance is inversely proportional to area. Okay, तो पता होगा resistance equals to rho L by A. तो resistance जो है area के inversely proportional. So last question है why are aluminum and copper wire used in transmission of electricity? तो अल्युमिनियम और कॉपर वायर को ट्रांसमिशन पर्पस में क्यों यूज किया जाता है? तो इसका पहला रीजन तो दे आर चीपर. कॉस्टिंग इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है. दूसरा दे आर गुड कंडक्टर.
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा रीजन है दे आर डक्टाइल। अब डक्टाइल किसको कहते हैं? डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब डक्टाइल कहने का मतलब कि अल्मुनियम को और कॉपर वायर मटेरियल से इनसे तार बनाया जा सकता है और इसी तार को ट्रांसमिशन पर्पस में यूज करते हैं। सो 3 रीजन है मेनली कि उनको क्यों यूज किया था। फर्स्ट इज दैट दे आर चीपर, सेकंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड दे आर डक्टाइल। तो ये थे टोटल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि हमने 3 पार्ट में कवर किया है। इससे पहले अगर 2 पार्ट आपने नहीं देखा तो 2 पार्ट भी देख लें प्लीज़। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, पीस आउट।